अरविंद भाई साहब एक नमस्कार। वंदना कर भैया, 2 लाइन तो बोल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान की जय। थैंक यू। चतुर्वेदी समाज की जय, जय जय। संगठन की जय, थैंक यू। सबके सद्भाव और प्रेम की जय। जय हो जय हो। चलो, जय हो। Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Rather, I welcome you on behalf of the CSRE group, Chaturvedi Social Responsibility and Advisory Group, on this wonderful occasion of website launching of our platform. ये जो ड्रीम था, सीपी अंकल, ब्रिजमोहन अंकल, हरवंश अंकल, सभी लोगों की जो विजन था, सभी लोगों का जो ड्रीम था, today we have come to a milestone where we are giving a formal shape to this dream. पिछले 6 महीने से हम सब प्रोफेशनल्स इस ड्रीम को लेकर साथ चल रहे थे कि we need to have a platform which can connect the community and take the community overall enhancement to a next level. तो जो मुहिम हम लोगों ने 6 महीने पहले चालू की थी, today basically we are giving a concrete and a tangible shape. And it is with great delight and great honor, I would like to say, that to start this officially with this milestone and taking this to a next level, amidst us we have our own legendary Shri SN Uncle. मैं अंकल के बारे में क्या कहूँ, बट एक बात कहूँगा कि डिकेड्स और सेंचुरी में कोई एक ऐसा लीजेंड पैदा होता है जो कम्युनिटी की परिभाषा ही चेंज कर देता है. Someone who defines what community is, someone who has truly believed in transforming the community from a traditional community to giving it a very modern outlook. One person who has so successfully done it for all of us and has taken our community to new heights is Shri SN Uncle. So it is with great honor and delight I welcome him to this most auspicious day of Dashera, whereby we would request him to launch our website. Please give a big applause to SN Uncle. सब ताली बजाएं, मेरे साथ जुड़ें. SN Uncle, आपका हार्दिक स्वागत है इस फंक्शन में जहां सारे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं इस वक्त. ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है. दिस विल रीच आउट टू ऑल द प्रोफेशनल फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ आवर चतुर्वेदी कम्युनिटी. मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने सिस्टम्स को इस वक्त म्यूट कर दें, क्योंकि अब हम फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वेबसाइट लॉन्चिंग का, एंड दैट विल बी फॉलोड विद अ कीनोट स्पीच बाय SN अंकल. सो SN अंकल, मोस्ट वेलकम टू यू. वी आर डिलाइटेड एंड ऑनर्ड टू हैव यू अमिस्ट ऑल ऑफ अस. आई नो आप बहुत कम पब्लिक अपीयरेंसेस में आजकल दिखते हैं, जाते हैं. आई एम ट्रूली ऑब्लाइज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव यू अमंगस्ट अस. You know the love and passion all of us have towards you. So everyone is as happy in this August gathering as I am simply seeing you being with us. So great welcome again, Uncle. Heartily welcome. And आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रिजमोहन अंकल कुछ कहना चाहते हैं. ब्रिजमोहन अंकल कुछ कहना चाहते हैं before the formal process. ब्रिजमोहन अंकल, over to you. This is also part of the process. And मैं ये कहना चाहता हूँ कि SN साहब को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो इस समय की नई उम्र की नई फसल है समाज की, वो इतना दीर्घ नहीं जानती है SN साहब को. तो थोड़ा सा उनका मैं परिचय देना चाहता हूँ कि SN भाई साहब का पूरा नाम श्रीनाथ चतुर्वेदी है. ये मथुरा के प्रसिद्ध पुरोहित और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से बिरला जी की पिलानी में इंजीनियरिंग करके और बंबई आए, और बंबई आके इन्होंने अपने किसी जानकार की सिख यूनिट को संभाला, और संभालने के बाद फिर अपने उद्यम में लग गए. ही इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम आवर चतुर्वेदी कम्युनिटी. ही सेट अप initially engineers and fabricators. Then he set up Sunita Engineers and Private Limited. Then at different location he set up a Anand Tank and Vessels Private Limited.
Then moving from his background of engineering, where he has already set up 2 units, he moved for pharmaceutical bulk drug. And for the common man, creating his headache clear, he set up a plant for aspirin manufacturing at Bangalore, a beautiful plant of, at that time, people used to say, this is a plant or a Mughal garden. In a very massive land piece, he set up the pharmaceutical plant. He then became the partner with Citibank Financial Services Company. We all professionals think that we are doing so good in the profession of finance, but none can match his partnership of Citibank Financial Services. Then he set up a sugar plant in UP. He set up another engineering plant in Bharatpur. So he's a multi-corner or milestone industrialist. Beside this, he went into the politics. And according to me, my knowledge, he became the first congressman or first politician from our Mathura Chaturvedi community to reach all India level by being taken in All India Congress Committee. He became the AICC member. He became the close friends of right from YB Chavan Sahab to SB Chavan Sahab to his Langotia Yar, Ghulam Nabi, and so many people. Actually, he started from Sanjay Gandhi. I forgot. He started with Sanjay Gandhi. So he done that. Then he contested Lok Sabha elections also. Okay. Elections में जो होता है कोई उसका इनको कभी गम नहीं हुआ. And coming back to his personal life, he is very आशिक मिजाज person. इनके पास हर मूवमेंट की इतनी सुंदर सुंदर शायरियां और वक्तव्य हैं कि अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले मैंने इनको यही रिक्वेस्ट की कि जब तक कार्यक्रम नहीं होता भाई साहब एक सुंदर सा मुखड़ा हो जाए तो जरा मूड सबका ठीक हो जाए. तो ये हमारे रंग बिरंगे एहसन साहब हैं. बम्बई के हिस्ट्री में he was the first youngster of the Chaturvedi community in Bombay, जो कि लाइव थे. और इनका एक ट्रियो था, मैं नाम अगर नहीं लूंगा तो अधूरा रह जाएगा. दीनो जी और बाले दीनो जी और एहसन भाई का तीनों का त्रिगड्ढा था. और वो उस जमाने के यूथ थे. कुंठे काका जी, कल्लू काका जी, मतलब ये सब सीनियर विजार्ड्स थे. और ये मतलब हमारे यंग यूथ लीडर थे. हम लोगों ने, मदन ने बाद में ज्वाइन किया. मतलब ये पहले के मतलब ध्वजारोही थे. एक मीटिंग हुई उस समय, थोड़ा सा चतुर्वेदियों का 10-12-15 का परिवार था और थोड़े से 10-20-25 कुलीन चतुर्वेदी थे. आज हम 10-15 से बढ़ के 1000 हो गए. वो कुलीन चतुर्वेदी हो सकता है 25 से 100 हो गए हों. तो एक उस समय जॉइंट मीटिंगें होती थी. तो पवई लेक पर बड़ी मीटिंग हुई. वहां पे कुछ बात ऐसी हुई मतलब कि एहसन साहब ने कहा हम खुद मुख्तार लोग हैं, हम किसी के साथ में मतलब सुनाने वाले नहीं हैं, हमारा झंडा हमारा रहेगा. और उस दिन से फिर वो चतुर्वेदी प्रगति मंडल की फाउंडेशन हुई, जिसके सौजन्य से बंबई में शुरू के 100-150 परिवारों में इतना हर्षोल्लास और मतलब चेनबद्ध, कड़ीबद्ध मतलब डेवलपमेंट और मोहब्बत बढ़ी. तो ऐसे अनोखे हमारे एहसन भाई हैं. हम सबका इनके बहुत बहुत सम्मान है. और अब मैं कहूँगा एहसन भाई साहब से कि आगे का कार्यक्रम करते हुए वेबसाइट को भी लॉन्च करें, और यह वेबसाइट बाद में लॉन्च करें, अपना वक्तव्य हो. और क्योंकि वेबसाइट के बाद सब वेबसाइट देखने में उलझ जाएंगे, देखना भी चाहेंगे, तो हम यहाँ हो सकता है कॉमन में विकास दिखा भी दें. तो पहले एक बार मतलब भाषण, फिर वेबसाइट का फीता, धन्यवाद प्रस्ताव जो भी दे, और देन लेट अस शो द वेबसाइट हियर व्हाटएवर इज पॉसिबल. ठीक है. ओवर टू यू विकास. Thank you, Brismal uncle.
Thank you very much. Thank you very much for giving a very elaborate introduction of uncle. ये शायद अधूरा रह जाता बिना इसके जो आपने डिटेल इंसाइट दी है. ऐसा अंकल, आई वुड रिक्वेस्ट यू, जैसा ब्रिजमोहन अंकल ने कहा कि जो वेबसाइट लॉन्चिंग का कार्यक्रम है वो तो हम थोड़ी देर में कर लेंगे, बट पीपल वुड लव टू हियर यू. एवरीवन इज सो ईगर एंड एक्साइटेड टू हियर यू अंकल. सो ओवर टू यू एस एन अंकल. थैंक यू. दोस्तों, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. भगवान आपको बहुत तरक्की दे. सब लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ रहे और मेरी भी ये शुभकामना है कि मेरा परिवार आसमान की बुलंदी को छुए. जब मैं विकास ने मुझे फोन किया, अंकल आपको बात करनी है, कुछ ऐसा लगा कि ये मुझे क्यों याद किया गया इस सब के बीच में. आप लोगों के प्यार ने मुझे जब ये अनुभूति दी तो मैंने कहा चलो ऐसे शायद जिंदगी का ये उम्र का ढलते पलाव में, अब पता नहीं जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं, एक अतीत से लेकर के अब तक की बातें करने का, समाज के लोगों से अपने मन की बात करने की एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिले, जिसके ऊपर जो समाज में हुआ है. जब मैं 7 साल का था तब से मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हर एक यंग आदमी समाज का जो जरा भी बड़ा होता था, सबसे पहले उसका विचार था कि मैं अपने समाज के लिए क्या करूं. छोटा समाज, इसकी इतनी बड़ी खूबसूरती है कि आज इस बदलती मटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर भी हम लोगों के आपस के बीच में इतना मेल मिलाप, इसको देख करके जो अनुभूति होती है, ये महसूस होता है कि ये स्मॉल इज मोर ब्यूटीफुल देन एवर इट कुड हैव बीन. इस समाज में जिसके अंदर एक दूसरे के दर्द और भावनाओं के लिए अब भी जगह है और अब भी फीलिंग है, एक दूसरे के मरने जीने में साथ रहते हैं, क्या ये समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? है. हर दशक में मैंने देखा कि जितने यंग आदमी पैदा हुए, हर एक के मन में ये इच्छा रही कि हम समाज को किसी तरह से अपने आप को कंट्रीब्यूट करें, उसका विकास करें. प्रश्न ये है कि हमने इन 7 दशकों में जो मैंने अनुभव किए, हमारा एक छोटा सा समाज जो बहुत जबरदस्त गुर्बत से निकला, एक बार कंस मेले में मुझे समाज के बहुत से लोगों ने पूछा, एसएन चतुर्वेदी आप इस समाज के बारे में क्या सोचते हो? तो मैंने उनसे कहा कि हम लोगों का समाज एक बहुत गुर्बत से बाहर निकला है, मगर ये एक सोचने का तरीका होता है कि मेरी गुर्बत क्या है, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने इतने बड़े संस्कार दिए, हमारे पूर्वजों ने इस तरह की एजुकेशन दी, इस तरह की डेयरिंग दी, इस तरह का करेज दिया कि हम दुनिया में कहीं भी जाकर के अपने आप को दुनिया से अलग स्थापित कर सकें. ये एक हमारे सब चतुर्वेदियों के कैरेक्टर में बिल्टअप था. तो उस बिल्टअप को लेके मैंने कहा, ये शाख है नूर जिसे जुल्मतों ने सींचा है, अगर फली तो शरारों के फूल लाएगी, न फल सकी तो नए फसल गुल के आने तक जमीरे अर्श में जहर छोड़ जाए.
मतलब मैं ये सोचता हूं कि अगर मेरा समाज सही रास्ते पर, जो कि आज आपके इस लॉन्चिंग का मेन टॉपिक है, डायरेक्शन, हम जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, और मैं ये एक बड़ी भीड़ देख रहा हूँ समाज की कि जो भी व्यक्ति उठता है वो ये कोशिश करता है कि मैं समाज को कुछ दूं, मगर अगर उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो, मुझे जो महसूस होता है ये 7 दशकों के बाद कि हम जो पुरानी पीढ़ी से लेके अब तक जिस मकाम पे आ गए हैं, उस अचीवमेंट को अगर हम देखते हैं तो हमने इतना कुछ अचीव किया है जिसके लिए हम अपने आप को बड़ा अभिमान फील कर सकते हैं। हमको कहीं कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है। हमारी समाज में एक से एक अच्छे चार्टर अकाउंटेंट हुए जो इस देश के सब उद्योगपतियों को दिशा देते हैं। दीनानाथ जी का परिवार, ब्रजमोहन जी, विकास, तुम्हारे साथ तो मैंने हॉलैंड में टाइम गुजारा। तुम्हारे जी जो अचीवमेंट है थैंक यू समाज के लिए, लोग कुछ भी कहें, जो महेश ने किया, जो महेश पाठक कर रहा है आज, मेरा छोटा भाई है, उसके बारे में बात करूं मैं, उसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो उसने समाज को आज एक दिशा दी है, एक स्ट्रेंथ दी है, तुम्हारे अपने पिताजी सुभाष। थैंक यू। ऐसे ही लड़कियां समाज की, और लड़कियां जो बंधन तोड़ करके बाहर निकल रही हैं, जो जेट उड़ाती हैं। मैंने उस दिन गूगल पे देखा एक चतुर्वेदी लड़की जेट उड़ाती है, वन ऑफ द लीडिंग लेडी है। एक से एक जबरदस्त लड़के जो ऑक्सफोर्ड में गए, जो कैम्ब्रिज में गए, जो टॉप वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में आज लीडर बने हुए हैं, क्या हम अपने अचीवमेंट को बोस्ट नहीं कर सकते हैं? यस, हमको करना चाहिए, मगर उस सब के करने में हमको ये महसूस होता है कि समाज के प्रति हमारे दायित्व के लिए हम दिशाहीन होते जा रहे हैं। आज जो ये सब्जेक्ट है, अगर मैं सब्जेक्ट से बाहर बात करूंगा तो वो बड़ी बेमानी होगी, ये इतना इम्पोर्टेंट वक्त निकल जाएगा। क्या हमको ये नेगेटिव थॉट छोड़ करके कि समाज में उसने क्या किया और किसने क्या किया, हमको इस पे अभिमान होना चाहिए कि हमने, समाज ने हमको कहाँ ला करके खड़ा कर दिया। आज हमको ये जरूरत है कि हम सोचें, क्योंकि हम जब गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोगों का एक एटीट्यूड बन गया कि पैसा ही सब कुछ है। और इस समाज के अंदर, जिस समाज के अंदर हम विद्या के पुजारी रहे, हमारी नॉलेज हमारी सबसे बड़ी ताकत रही, हमारी पॉपुलैरिटी, हमारी विद्या, हमारा ज्ञान हमारे कर्मों से हुई, न कि हमारी दौलत से हुई। जब इस समाज में ये भेड़ चाल हो गई कि सिर्फ जिसके पास ज्यादा पैसा है वही पूजनीय आदमी है, तो समाज के पतन की पहली स्थिति शुरू हो जाती है, क्योंकि आपस में इससे वैमनस्य की शुरुआत होती है। ब्राह्मण बहुत गरीब था, लक्ष्मी के दरबार में गया, बोला माँ हम लोग खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, तेरी पूजा करते हैं, तू हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। तो लक्ष्मी ने बोला, एक द्विजराज मेरे पतिहु को लात मारी, एक द्विजराज मेरे पिता को अचय गया।
एक द्विजराज मेरे भैया को कलंक दिया, एक द्विज ऐसा जो मुझको घर ले गया। अरे ब्राह्मणों, तुमने मेरे पति को मेरे बेडरूम में घुस के लात मारी है, तुम मेरे पिता को पी गए हैं, समुद्र को निकल गए हैं, तुमने मेरे भैया चंद्रमा को कलंक दिया है, और रावण मुझे उठा के ले गया। तुम ब्राह्मणों ने मेरा कोई छोड़ा है जो मैं तुम्हारे पे मेहरबानी करूं? ये तो हमारी अथक प्रयास का फल है कि हम बच्चों ने और हम लोगों ने जो तुम लोगों ने आज 7 शतक में जो पाया है, वो उन बुजुर्गों की तपस्या का फल है जिनने तुम्हें से कर्म दिए जिसके बल पे आ गए। ये रही पास्ट की बात। अब आज जब ये सवाल पैदा हुआ है कि हमारे समाज का आगे का करना क्या है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। इस कारवां में जब तक ये हमारे मन में थॉट नहीं आएगा कि हमको समाज के लिए क्या करना चाहिए, हमारे समाज की अब दिशा क्या होनी चाहिए कि जिसमें हमारे समाज में से भी कोई प्रधानमंत्री बने, हमारा समाज भी इस देश को दिशा दे, और हमारा ये छोटा सा खूबसूरत समाज अपने आप में एक खुशबू फैला सके जिस खुशबू से दुनिया महके। उसके लिए हमको ये बहुत जरूरी है, ये मंथन बहुत जरूरी है जो विकास ने आज के एजेंडे में लिया है। इसलिए मैं इस एजेंडे को महत्व देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इसके बारे में मैं 2 शब्द आप लोगों को बोलूं। मैंने लास्ट कुछ वर्षों में मथुरा में कुछ शादियां अटेंड की। एक प्रश्न उठा मेरे मन में, ये यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब दिखावा, ये महज कंपटीशन, ये आपस का कंपटीशन करना ही क्या समाज में दिशा ज्ञान है? नहीं। हमारे समाज में आज ये शक्ति है, ये ताकत है, ये स्ट्रेंथ है कि हम एक दूसरे को छोड़ के एक, मैं बचपन में जब पढ़ता था तो मैंने एक प्रार्थना की थी, प्रार्थना पढ़ी थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर, निज आन शान मर्यादा का प्रभु ज्ञान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर होता है। अगर हमने अपनी समाज के लिए, अपने जात के लिए कुछ ऐसे निशान नहीं छोड़े जिससे कि हमारी पीढ़ियां आने वाली उस पर, अपने प्रयासों से तो बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं। एक यूनिवर्सल नॉलेज सेंटर इस झूठे दिखावे से दूर कि मेरे यज्ञोपवीत में मैंने 15 रुपए बांटे और दूसरे ने 25 रुपए बांटे, और ये पर्सनलाइज लेवल पर इस हाइट पर पहुंचने के बाद जब हमने आज हिंदुस्तान में, दुनिया में, समाज में अपने आप को महसूस कराना कर दिया है, लोग महसूस करने लगे हैं एक चतुर्वेदी कम्युनिटी, लोग महसूस करते हैं कि चतुर्वेदी एक डोमिनेंट पावर है, ये बहुत कैलिबर्ड लोग होते हैं। उसमें जो ये रेट रेस हो गई है जिसके अंदर के, दुबई में गया, दुबई में पहले इतने लोग गए, अब दुबई का क्या कैरेक्टर हो गया है मैं पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता। वहां से जितने फ्रॉड होते हैं, यहाँ जितने फ्रॉड होते हैं, क्या ये उस रेट रेस का परिणाम नहीं है जिसमें हमारे समाज ने, जिसने थोड़ा पैसा बना लिया उसको इज्जत देना शुरू कर दिया? क्या हम अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि हमने अपनी विद्या, बुद्धि
और जो हमारे विकास का मार्ग था उससे हम दिग्भ्रमित हो गए हैं। हम अपने आप इस छोटी सी प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़े उद्देश्य को, जो कि समाज को ज्ञान देना है, देश को ज्ञान देना है, आप लोग तो अब बड़े हुए हैं। आज से 80 साल पहले भी और 100 साल पहले भी मथुरा में चतुर्वेदियों को गुरु कहा जाता था। हम गुरु इसलिए थे कि हम समाज को दिशा देते थे। अब बाहर निकल के आए तो उद्योगपतियों को दिशा, उसके बाहर निकल के आए समाज को दिशा, देश को दिशा, दुनिया को दिशा। अब हम वर्ल्ड ओवर पहुंच गए हैं। हम उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं, जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक ऐसी दिशा दें, क्योंकि अगर आदमी का कोई उद्देश्य नहीं होता है तो वो उससे भटक जाता है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज का अपने आप में कोई एजेंडा नहीं है, एक उद्देश्य नहीं है। रूप का आकर्षण प्यार नहीं होता है, सतरंगी सपना साकार नहीं होता है। मैंने यह देखा है जीवन के दर्पण में, अनब्याही साधका श्रृंगार नहीं होता है। हम किसी चीज को देख करके उससे प्रभावित होकर के 7 तरह के सपने बुनते हैं तो उनमें से कोई सपना पूरा नहीं। हमको एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक गोल लेकर, एक अचीवमेंट लेकर, एक प्लेटफॉर्म, मैं ये उम्मीद करता हूं विकास, और मैं ये उम्मीद करता हूं उन सब लोगों से जो ये सोच रहे हैं कि अब क्या ये वक्त नहीं आया कि अब इस बढ़ते हुए समाज को, मैंने एक भी नेगेटिव बात नहीं की है, क्योंकि मेरे समाज ने जो तरक्की की है उससे मैं बहुत खुश हूं। मैं ये भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने कभी छोटी सी दुआ बहार की मांगी थी, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को, कि इस गुलदस्ते में मुझे मेरी भी जगह ढूंढने को नहीं मिलती है। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? इससे बड़े अचीवमेंट्स क्या हो सकती है? मुझे नफरत होती है उन लोगों से जो इस समाज की बुराई करते हैं, मगर हाँ, इसके अंदर कुछ बुराइयां जो पैदा हो गई हैं वो गलत डायरेक्शन की वजह से हो गई है। और आज का सब्जेक्ट यह है कि क्या हमारा डायरेक्शन सही है, और अगर वो डायरेक्शन सही नहीं है तो जो परिस्थितियां 70 साल पहले थी वो परिस्थितियां पुरानी हो चुकी है। अब हमारी परिस्थितियां सुधर चुकी हैं, अब हम साधन संपन्न हो चुके हैं, अब हमारे पास शक्ति है, अब हमारे पास ताकत है, अब हमको उसका भोला प्रदर्शन। लोगों ने मुझसे पूछा, ये शादी विवाह हमने किया, इतना किया, एक दिन मैंने देखा शादियां थी कुछ 50-100 शादियां थी। हर शादी में आधी मिनट जाओ, हर आदमी ने कम से कम 25-50 लाख रुपया बर्बाद किया। क्या समाज में इतने इंटेलेक्चुअल हैं जो दुनिया को ज्ञान देते हैं, उनने सोचा कि इसकी जगह अगर हमने 2 दिन का एक महान समाज सम्मेलन किया होता और जो उसमें अरबों रुपया, करोड़ों से भी बड़ा पैसा बर्बाद हुआ 50 फंक्शन में, उसके 10वें हिस्से में समाज का ग्रांडेस्ट फंक्शन किया होता और उसके अंदर हर की कॉमन शादी की होती, तो हर एक आदमी के एल्बम के फोटो में 5000 आदमियों ने शादी अटेंड की होती, जिंदगी की एक याद बनती, करोड़ों रुपए समाज के बनते, बचते, उस करोड़ों रुपए से कोई नेक काम हो सकता था, कितने लोगों का भला हो सकता। क्या मिलेगा दिल किसी का तोड़ के,
ले दुआ टूटे दिलों को जोड़ के, जग में ऐसी कुछ निशानी छोड़ दे जिससे हो दुनिया में चर्चा चंद रोज। कुछ ऐसी निशानी छोड़ दो मेरे दोस्तों, कुछ ऐसा डायरेक्शन इस देश में देते हो। समाज के गुरु बनो, मथुरा के गुरु बनने से निकल के समाज के गुरु बने, समाज से बाहर निकल के देश के गुरु बनो, देश से गुरु बन के दुनिया के गुरु बनो। ये हमारा मिशन होना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए। हम लोग तो कभी ना हमने किसी चीज की परवाह की, हम तो फकीरी में भी जीने वाले लोग। हम दौरे खिजा में भी महकते हैं रकीबो। जब खिजा का दौर होता है, जब दुनिया में अंधेरा होता है, और रकीब कहते हैं जो मेरी गर्लफ्रेंड का फ्रेंड हो, मेरा कंपटीटर हो। हम दौरे खिजा में भी महकते हैं रकीबो। खुशबू तो गुलिस्तां को विरासत में मिली है। ये सब तो हम सबको विरासत में मिला है। इसको पाने के लिए हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज बड़ा शुभ दशहरे का दिन है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप सबने एक हस्ती बनाई है, आप इस हस्ती को लेके अपने आप को एक मिशन के प्रति समर्पित कर रहे हैं, जिसका आपने इतना खूबसूरत पॉजिटिव, हम बॉर्न पॉजिटिव है, नहीं तो यहां पहुंच ही नहीं पाते। बीइंग प्रोएक्टिव, ये तो हमारी बिल्ट इन में है। बीइंग प्रोडक्टिव, out of nothing we create things. Being professional, that is needed. That is the need of the hour. And professional of what? That we have a certain objective towards the community. And we help the community with that objective to achieve that objective. So it is very important that first you identify your goal, that what is that on where you want to take your community to, and then activate those underprivileged who are still left in the community to give them guidance, support, and facilities to grow up to the extent that you are and go further. That is Samaj Seva. खाली दिखावा, झूठा फरेब, एक दूसरे की क्रिटिसिज्म, एक दूसरे से कंपटीशन, DN चतुर्वेदी बड़े हैं या SN चतुर्वेदी बड़े हैं या महेश चतुर्वेदी बड़े, अरे इस सब से क्या मिलेगा? मुझे ये सब सोच करके आत्मा में थोड़ी सी विचलता होती है, मगर ये सब वक्त का तकाजा है। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं। तो आज ने जो मैंने आप लोगों से अपने मन की बात कही, हो सकता है ये आखिरी बात हो। अब हम लोगों का, मैं आज 76, 75 या 76 का हो गया। कल जैसी बात है, आज भी याद है मुझे। मैं एक भी दिन मेरी जिंदगी का भूला नहीं। और सर्द सर्द पत्तों को शाखों पे रहने दो, लौटती बहारों की आखिरी निशानी है। हम तो आप लोगों की आखिरी निशानी है। पता नहीं इसके बाद कभी बात करने का इस तरह के प्लेटफॉर्म पे मौका मिले या नहीं मिले,
दिल की बात कहने का इस तरह मौका मिले या नहीं मिले, मगर एक मन में थोड़ी सी ये कसक होती है जब इस तरह की चीजों को देख करके आप अपने विचार भी नहीं कर सकते, लोगों को बता भी नहीं सकते, प्लेटफॉर्म भी नहीं है। आज आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया तो मैंने आपसे बात कर ली, नहीं तो ये भी कल चला जाता है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों पे भी ताला लगा दिया जाता है तो वहाँ कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता। तो मैं ये समझता हूँ मैंने बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों को ले लिया, और आज तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके विकास, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठा हूँ खसारा करके। मैंने तो सिर्फ घाटा ही घाटा जिंदगी में किया है जी। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठा हूँ खसारा करके। मुंतजिर हूँ कि निगाहों के सितारों की जरा आंख लगे, ये सितारे जरा सो जाए। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। क्या बात है, बहुत खूब भाई साहब। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठा हूँ खसारा करके। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। बस बहुत कुछ कहा और कुछ भी नहीं कहा। मेरे बहुत से प्यारे बच्चे जो बहुत तरक्की के, सुरेश चतुर्वेदी, अरविंद, तुम सबके चेहरे देख रहा हूं, लगे ही रहते हो कुछ न कुछ करने में। खाली एक दिशा बना लो क्या करना है, समझे? जो आप लोग मिस कर रहे हो वो है आपका ऑब्जेक्टिव। अच्छा हुआ कि आज आपका डिबेट ऑब्जेक्टिव के ऊपर है, प्रोएक्टिव होने की तरफ है। यू आर ट्राइंग टू कंसिडर देयर इज समथिंग मिसिंग इन द कम्युनिटी। आदमी बेचैन कब होता है? why this thought has come into your mind? I can understand it very well. It has come to your mind that after achieving most of the things, you people still feel you are missing something in life. You are missing something. The community is missing something. There is something missing in the community. So try to understand what you are missing in the community. What is that community need to now go to the next step, to go to the moon, to be on the top of the world. हम उसको देखने के लिए रहे या नहीं रहे, मगर जिंदगी में वो निशान के सदियां याद करें कि हमारे समाज को एक दिशा मिली थी जिसने उठा करके हमको फिर से विश्व गुरु बना दिया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इन सब भावनाओं के साथ आपका प्यार, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 लव कि आप लोगों ने मुझे याद किया। एक बहुत खूबसूरत सी लास्ट बात बता देता हूँ। जापान में समुराई वहां की पुरानी कल्चर थी। जब तरक्की करो तो याद रखना, इसलिए ये वार्न कर देता हूं। जापान में एक पुरानी समुराई कल्चर थी। नया जापान का किंग आया तो अमेरिकन डोमिनेंस हुआ। उन्होंने वो पुरानी कल्चर को मारा और लास्ट समुराई को मार दिया। यंग जापान का राजा था, उसका लास्ट समुराई का एक
कुलीग था जो फोर्स से बना था, अमेरिकन जनरल। तो जब वो किंग के सामने पेश हुआ तो किंग ने बोला, बहुत अफसोस हुआ किंग को कि मैंने पुरानी कल्चर को मार दिया। तो वो उसने लास्ट समुराई के बोझ में ये पूछा उस जनरल से, टेल मी हाउ ही डाइड। He said, no sir, I will tell you how he lived. मेरे जाने के बाद मैं how he I died कोई याद न रखे, मगर ये याद रखे how I lived. That is life. And हमको अपनी पुरानी ट्रेडिशन रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है, ये मिशन तुम बनाओ, इसमें समाज की हेल्प करो, नए बच्चों को हेल्प करो। इससे ज्यादा समाज के लिए तुम कुछ नहीं दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू, थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। फॉर्मली आप वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं। मैं श्रेयस भैया, मैंने मल्टीपल आपका शेयर स्क्रीन कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन अगर स्टार्ट करेंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अंकल वेबसाइट को लॉन्च करें। श्रेयस, आर यू देयर? यस सर। प्लीज आप अपनी स्क्रीन पर जाएं और वेबसाइट www csragroup.com। अब अंकल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अंकल एंटर के बटन दबाएं प्लीज अंकल। ऐसा अंकल, गो गो and website is launched uncle formally. This is the website. Thank you uncle. थैंक यू। थोड़ा स्लो स्क्रॉल डाउन करें श्रेयस भैया। यस सर। ये विजन बताता है, ये स्पेल्स आउट, जैसा अंकल ने भी कहा, बीइंग पॉजिटिव, बीइंग प्रोएक्टिव, बीइंग प्रोडक्टिव एंड बीइंग प्रोफेशनल। I hope I did not cross my limit and No, not at all. Again, not at all uncle. It was wonderful. It was wonderful. So इसके नीचे जाएंगे आप। So इसमें जो जो अभी तक हमने इवेंट्स किए हैं उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जो जो भी अभी तक हमने वेबिनार्स किए हैं, सारी उसकी रिकॉर्डिंग्स, उसके फोटोग्राफ्स, उसका डिटेल्ड इनसाइट ऑन दोज इवेंट्स। ये हमारे जो फाउंडर्स हैं, ग्रुप फाउंडर्स, उसके कोट्स हैं फ्रॉम आवर ओन लेजेंडरी ब्रिजमोहन अंकल। यहां देखेंगे, यहाँ जितने भी फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, सरवंश अंकल, सीपी अंकल, फ्रॉम माई सेल्फ, लोकेश जी, मुकेश भैया, मदन गोपाल। एंड आप इसको नीचे लेके जाएं, देन कनेक्ट विद अस, गैलरी, फाउंडर्स। सो डिटेल में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग आराम से इसको देखें। आवर वेबसाइट इज www.csra.com, so csragroup.com। एक बार ज्वाइन अस पे बस क्लिक करो, जो नीचे ज्वाइन अस है, श्रेयस भैया, आई विल रिक्वेस्ट यू, एक ज्वाइन अस पर बस एक बार क्लिक करें। तो ज्वाइन अस पे आप थोड़ा नीचे लेके जाके दिखाएंगे। तो ये मेरा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, और जो यंगस्टर्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं कम्युनिटी के लीडर्स के साथ, सो दैट जो लीवरेज कर सके कम्युनिटी के लीडर्स के नॉलेज और एक्सपर्टाइज और नेटवर्क के लिए, वो अगर लिंक दबाएंगे तो गूगल फॉर्म खुल जाएगा। तो आप सभी लोग, ये सभी बच्चों को, सभी यंगस्टर्स को मेरा मैसेज है, ये फॉर्म आप भरिए और ग्रुप के साथ जुड़िए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट वेयर वी ऑल टुगेदर एंड कलेक्टिवली कैन टेक द कम्युनिटी टू नेक्स्ट लेवल। सो आप अब थैंक यू अंकल। अब श्रेयस भैया आप स्क्रीन को बंद कर सकते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच एहसन अंकल, थैंक यू वेरी 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 मच for a very inspirational
I would say नहीं मैं ब्रिजमोहन अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए एहसन अंकल के लिए। ब्रिजमोहन अंकल। BM uncle? Yes. I request you to formally give a vote of thanks to Hasan uncle. भाई साहब क्या आपको कहूँ, मतलब धन्यवाद में आपने जो कई बार कहा कि आखिरी संवाद है, ये है वो है, आखिरी कुछ नहीं होता भाई साहब। हमारे आपके और समाज के संवाद तो चलते रहेंगे, और ये संवाद जो आज आपने रिकॉर्ड कराया है, ये भगवान चाहेगा शताब्दियों तक यहाँ पे मौजूद रहेगा। और मैं समाज के सभी लोगों की तरफ से आपके अच्छे स्वास्थ्य की, आपके अच्छे स्वभाव की और आपके अच्छे सहयोग की प्रशंसा करते हुए सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और सब लोग मेरे साथ में ताली बजाकर भाई साहब को धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ भाई साहब। सब अनम्यूट कर लें, फिर सब ताली बजाएं। सबसे रिक्वेस्ट है सब अनम्यूट करके ताली बजाएं। ये भाई कयामत तक रहो सादा, यही दिल की तमन्ना है भाई साहब। अभी तो many more years to have your guidance भाई साहब। We need भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। और एहसन भाई साहब, आप तो ये कहते हो कि मैन इज एजेड बाय हिज हार्ट एंड यू आर एवर यंग हार्ट, so how can we have a talk like that it is we have to be having lot of cheerful years and months and years together. Thank you so much. Thank you very much for all of you, for your wonderful love. Thank you.